Welcome dear learners. In this video lecture, we will going to discuss about the isolation technique of DNA and what is the purpose of DNA isolation in the molecular biology and what is the basic concept, what are the requirement, what are the methods of DNA isolation we will discuss in this video. So let's start. Isolation and purification of genomic DNA. Bacteria, a prokaryotic organism having DNA without any membrane-bound nucleus. Their DNA is circular, present in the cytoplasm, and this DNA is called as genomic DNA. As you all know, prokaryotic DNA or the prokaryotic organism or prokaryotic cell, it does not have the double membrane bound organelles or the membrane bound organelles like nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. These all organelles are absent in the prokaryotic cell. And the eukaryotic cell, all the double membrane bound organelles or the membrane bound organelles are present, in which nucleus it contains the DNA in eukaryotic cells. Nucleus is absent in the prokaryotic cell. Instead of nucleus, there is a nucleoid which is present in the prokaryotic cell, and the DNA in the prokaryotic cell it is present in the cytoplasm. It is a free floating. So this is called as the genomic DNA. Genomic DNA will often be required as a source of material from which to obtain genes to be cloned. Genomic DNA may be obtained from a culture of bacteria, from a plant, from a animal cell. So we have to extract the DNA. What is our purpose or what we have to study in this video? We have to isolate, we have to extract DNA from the particular cell of interest. Like we are interested in the isolation of DNA from the E. coli, that is bacteria, or we are interested in the plant DNA. Okay. Also, we are interested in animal cell DNA. So the purpose of the isolation and purification of DNA, first of all we have to extract DNA from the particular cell. So genomic recombination, it is the exchange of information between two DNA segments. This is the common occurrence within the same species. By artificial means, when a gene of one species is transferred to another living organism, is called as RDT, that is recombinant DNA technology. It is common, so this is known as genetic engineering. So for this DNA isolation, it is the main concept. DNA आइसोलेट क्यों करना है, तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लाइक फॉर DNA सीक्वेंसिंग, लाइक फॉर द DNA वैक्सीन्स, for the recombinant DNA technology, also for the cloning purpose. We have to first isolate the DNA which we are interested. So DNA isolation is the process of purification of DNA from a sample using combination of physical and chemical method. The first isolation of DNA was done in 1869 by Friedrich Mischer. Friedrich Mischer is known for the isolation of DNA from the pus cell. He isolated the pus cell. In that, he extracted the organelle and he named that organelle as nuclei. After that, when he studied in the basic properties of nuclei, he got the clue that there is something is showing acidic material or acidic property, so he named that nucleic acid. Method used to isolate DNA are depend on the source, age and size of sample. In general, they aim to separate DNA present in the nucleus of the cell from other cellular component. You all know, अगर एक सेल है अपने पास, तो वो सेल में बहुत सारे कंपोनेंट है. अगर यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक भी है, तो सिर्फ डीएनए तो नहीं होगा उसमें. अदर देन द डीएनए देयर आर वेरियस मटेरियल लाइक आरएनए, राइबोसोम, द apparatus, the raw material,
ओके, दैट आर प्रेजेंट इन द सेल. सो हमें सिर्फ डीएनए में इंटरेस्ट है, तो हमें ये सब चीज़ों में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है. ऐसा तो नहीं होता है कि डीएनए सिर्फ यहीं प्रेजेंट है. अगर वो प्रोकैरियोटिक में तो वो साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी फ्री फ्लोटिंग है, कहाँ पे भी मिक्स हो सकता है. तो हमें सिर्फ डीएनए को आइसोलेट करना है, मतलब हमें प्रोटीन्स को अलग कर देना है, हमको आरएनए को अलग कर देना है, हमको अदर जो सेल मटेरियल है उसको भी अलग कर देना है, और उसमें से हमें सिर्फ डीएनए निकालना है. तो इट इज़ वेरी टीडियस जॉब. So for this purpose, isolation of DNA is needed for genetic analysis, which is used for scientific, medical और forensic purpose. अगर हम isolation करते हैं DNA का, उसका genetic analysis या molecular biology में सबसे ज़्यादा important role है, which is used for like scientific, medical, forensic purpose. ठीक है. प्रोसीजर, अभी हमें देखना है कि आइसोलेशन करना है हमें डीएनए का, तो हमें कुछ प्रोसीजर या फ्लो चार्ट या प्रोटोकॉल फॉलो करना है. ठीक है. तो फ्लो चार्ट या प्रोटोकॉल क्या है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर स्टेप्स. फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट, सेकेंड वन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल एक्सट्रैक्ट, थर्ड वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल, and fourth, measurement of purity of DNA concentration. These are the 4 types of particular steps to carry out the process of isolation or the extraction of DNA from the cellular component. So let's see one by one. First is preparation of cell extract. To extract the DNA from a tissue or cell of interest, the cell have to be separated and the cell membrane have to be disrupted. The extraction buffer helps in carrying out this process. Chemicals such as EDTA, that is ethylene diamine tetraacetate or the tetraacetic acid, which removes Mg2 plus ions that are essential for preserving the overall structure of the cell membrane, and the SDS, that is sodium dodecyl sulfate, which aids in the disrupting the cell membrane by removing the lipids of the cell membrane, are included in the extraction buffer. First, we will see about preparation of cell extract. हमारा मेन पर्पज़ है कि हमें डीएनए को निकालना है बाहर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेल. कैसे निकालेंगे? तो 2 ऑप्शन है. हम सेल को तोड़ देंगे. कैसे तोड़ेंगे? तो सेल के पास सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है. तो वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए हमें कुछ केमिकल्स लगेंगे, कुछ फैक्टर्स लगेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन बफर जो है वो बना लेंगे. एक्सट्रैक्शन बफर में क्या रहेगा? EDTA रहेगा, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, एंड दूसरा रहेगा SDS, सोडियम डोडेसिल सल्फेट. सोडियम डोडेसिल सल्फेट और EDTA का काम क्या है कि EDTA क्या करेगा? Mg2 प्लस आयन रिमूव करेगा. Mg2 प्लस आयन क्यों लगता है? सेल मेम्ब्रेन का जो भी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी करना है उसके लिए लगता है. और सोडियम डोडेसिल सल्फेट क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन को ही तोड़ देगा. कैसे तोड़ेगा? जो लिपिड कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो बनता है लिपिड कंपोनेंट से. ठीक है. फॉस्फोलिपिड बायलेयर बोलते हैं हम. सेल जो मेम्ब्रेन होता है, वो जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो पर्टिकुलरली सेल मेम्ब्रेन ये लिपिड मॉलिक्यूल से बनता है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर. तो हम क्या करेंगे? सोडियम डोडेसिल सल्फेट जो है वो लिपिड बायलेयर को ही तोड़ देगा, जिसके वजह से सेल के अंदर का जो भी मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा. और बाहर आके कहाँ आएगा? बफर में, जो भी हमने ये बफर यूज़ किए. मतलब EDTA क्या करेगा? सबसे पहले वो Mg2 प्लस आयंस रिमूव कर देगा फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, एंड सेकेंड वन इज सोडियम डोडेसिल सल्फेट विच डिस्टर्ब्स द सेल मेम्ब्रेन. मतलब अभी आपने क्या किया? सेल को फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर दिया, उसको सेल को तोड़ दिया है बाय यूजिंग दिस 2 केमिकल. ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप. Having the lysed cells, this is the final step in the preparation of cell extract, is removal of insoluble cell debris. Cell debris and partially digested organelles etc. can be pelleted by centrifugation, leaving the cell extract and reasonably clear supernatant. अभी हम क्या करेंगे? अब ये सब मटेरियल जो है वो बफर में आ गया है. हम सेल्युलर कंपोनेंट्स जो भी रहेंगे या जो भी मटेरियल लाइक प्रोटीन्स है, राइबोसोम्स है, एनीथिंग, सेल डेब्रिस उसे नाम दिया गया है, उसमें ही डीएनए भी है. ठीक है. तो वो सब मटेरियल आपका वो एक छोटा सा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होता है. ठीक है. इपेंड्रॉफ ट्यूब, उसमें आ गया. अभी हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो नीचे जो भी रहेगा, सबसे ज़्यादा हेवी कंपोनेंट वाले जो मटेरियल्स है वो नीचे सेटल हो जाएंगे और ऊपर आपको एक लेयर मिलेगा, उसे हम कहेंगे सुपरनेटेंट.
ओके, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट। अभी आप लोगों ने सेल एक्सट्रैक्ट बना लिया है, उसमें से मटेरियल, सेल में से मटेरियल सब बाहर लेके आए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल एक्सट्रैक्ट। प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल एक्सट्रैक्ट मतलब अभी डीएनए जो है उसको प्यूरिफाई करना है, मतलब हमें सिर्फ एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, डीएनए। In addition to DNA, the cell extract will contain significant quantities of detergent, protein, salt, and reagent used during cell lysis step and RNA. अभी हमें क्या करना है कि डीएनए को निकालना है ना, प्यूरिफाई करना है डीएनए को। तो हमने जो फर्स्ट स्टेप फॉलो किया प्यूरिफिकेशन एक्सट्रैक्शन, उसमें हमने कुछ केमिकल्स यूज़ किए, एक्सट्रैक्टिंग बफर कहेंगे उसको, और साथ ही साथ जब हमने सेल एक्सट्रैक्ट निकाला तो उसमें क्या क्या आता है, सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ डिटर्जेंट दैट इज सोडियम डोडेसिल सल्फेट, कुछ प्रोटीन्स, कुछ सॉल्ट्स एंड कुछ रिएजेंट्स जो हमने यूज़ किए थे। ऑल्सो आरएनए भी आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अ वैरायटी ऑफ प्रोसीजर कैन बी यूज टू रिमूव दिस कंटेमिनेंट एंड लिविंग द डीएनए इन द प्योर फॉर्म। हम वेरियस टेक्निक्स कैन बी यूज टू रिमूव दिस एक्सट्रैक्ट, और सब निकाल देंगे, सिर्फ डीएनए को ही रखेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसीजर आर इथेनॉल प्रेसिपिटेशन, फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन, मिनी कॉलम प्यूरिफिकेशन। तो फर्स्ट देखते हैं इथेनॉल प्रेसिपिटेशन। बेसिक कंसेप्ट क्या है ये स्टेप का, हमें डीएनए में इंटरेस्ट है, बाकी का मटेरियल हमें नहीं चाहिए। तो हमें वो मटेरियल नहीं चाहिए तो हम कुछ केमिकल्स, कुछ मेथड्स यूज़ करेंगे जिसके कारण सिर्फ डीएनए बचा रहेगा। इथेनॉल प्रेसिपिटेशन क्या कहता है? इथेनॉल प्रेसिपिटेशन यूजुअली डन बाय द आइस कोल्ड इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल, ठीक है। सिंस डीएनए जो है ये इनसोल्यूबल है इन दिस अल्कोहल, अगर वाटर में डाल देंगे तो इट इज सोल्यूबल, ठीक है। इट विल एग्रीगेट टुगेदर गिविंग अ पेलेट अपॉन सेंट्रीफ्यूगेशन। हमें सब जो ये स्टेप्स फॉलो करना है, तो ये स्टेप्स के लिए हमें पर्टिकुलरली सेंट्रीफ्यूगेशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। हमें सेंट्रीफ्यूगेशन ये स्टेप कंटिन्यूसली कैरी आउट करना ही है, क्योंकि हमें डीएनए जो है वो आइसोलेट करना है, वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो इथेनॉल प्रेसिपिटेशन ये जो होता है ये अपन आइस कोल्ड इथेनॉल से भी यूज़ कर सकते हैं, एंड आइसोप्रोपेनॉल जो केमिकल है ये भी प्यूरिफाइंग एजेंट है। दोनों अल्कोहल है और ये दोनों अल्कोहल में डीएनए इनसोल्यूबल है, मतलब डिज़ोल्व नहीं हो सकता। तो ये डीएनए डिज़ोल्व नहीं होगा, मतलब ये हमें जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे ये सब केमिकल्स के साथ, तो नीचे रह जाएगा हमारे अनदर मटेरियल फ्रैगमेंट्स, और जो एक सुपरनेटन मिलेगा या जो पेलेट मिलेगा वो हमारा रहेगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट दैट इज डीएनए। Precipitation of DNA is improved by increasing the ionic strength, usually by sodium acetate। तो हमें अगर डीएनए और भी ज़्यादा प्यूरिफाइड फॉर्म में चाहिए तो हम क्या करते हैं, या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए तो सोडियम एसीटेट इथेनॉल प्रेसिपिटेशन के मेथड में ऐड करते हैं। हमारा नेक्स्ट है फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड। फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, फिनॉल जो होता है ये ऐसा कंपोनेंट है, ये प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, मतलब प्रोटीन के जो बैकबोन है अमीनो एसिड से उनको वो तोड़ देता है, डीनेचर कर देता है, ठीक है। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द सैंपल, डीनेचर प्रोटीन जो है वो रह जाते हैं ऑर्गेनिक फेज में, और जो एक्वास फेज होता है, ठीक है, एक्वास फेज में हमारा न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए दोनों रह जाते हैं। फिर आरएनए को निकालने के लिए हम आरएनएज नाम का जो एंजाइम है वो यूज़ करते हैं, और वो आरएनए को डिग्रेड कर देता है। लास्ट वन है आपका मिनी कॉलम प्यूरिफिकेशन। मिनी कॉलम प्यूरिफिकेशन जो है इट रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट न्यूक्लिक एसिड में बाइंड ऑन एडसॉर्प्शन। जो एडसॉर्प्शन का फिनोमिनॉन है, मतलब एडजॉर्ब होना, एब्जॉर्ब नहीं बोल रहा हूँ मैं, एडजॉर्ब ADSORB टू द सॉलिड मैट्रिक्स, ठीक है। सॉलिड मैट्रिक्स या सॉलिड फेज जैसे हमने TLC किया था, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी केमिस्ट्री में किया होगा, या सिलिका क्रोमेटोग्राफी, उस प्रकार एक सॉलिड मैट्रिक्स या सॉलिड फेज जो होता है सिलिका का, उस पे डीएनए जाके बाइंड हो जाएगा। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द pH एंड द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बफर। सो ये 3 मेथड्स में से हम कौन सी भी मेथड यूज़ करके प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए का जो स्टेप है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल मतलब वी आर मेनली फोकसिंग ऑन डीएनए एंड द क्वांटिटी ऑफ डीएनए को बढ़ाना। मतलब क्या करना है कि प्यूरिटी जितना ज़्यादा हो सके डीएनए की उतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, और वो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमें क्या करना है, बाकी का मटेरियल जो है वो रिमूव करते हुए जाना है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज इथेनॉल प्रेसिपिटेशन, जो हमने पिछली साइड में पढ़ी, इथेनॉल प्रेसिपिटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एंड द टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज हम आइस कोल्ड इथेनॉल यूज़ करते हैं या चिल्ड इथेनॉल यूज़ करते हैं। 70% इथेनॉल हम यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, in which in less or absolute ethanol will efficiently precipitate polymeric nucleic acid. With a concentrated solution of DNA, one can use glass rod to pull out the DNA strands, while for dilution solutions precipitate DNA can be collected by centrifugation and redissolving in the appropriate volume of water. सो डीएनए एक्सट्रैक्शन की ये मेथड्स है, लाइक सेल हमें पहले तोड़ना है, मतलब सेल आर लाइज बाय यूजिंग डिटर्जेंट सोडियम डोडेसिल सल्फेट EDTA। सेल कंटेंट्स विथ ट्रीटेड विथ प्रोटीएजेस यूज़ करेंगे प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए, RNAs यूज़ करेंगे RNA को डिग्रेड करने के लिए। मतलब सेल में से और जो भी ये कंपोनेंट है इसमें से प्रोटीन निकल गया, RNA भी निकल गया, बचा सिर्फ अपना सेल डेब्रिस और अपना DNA। तो हम इस प्रकार ये डीएनए जब इथेनॉल प्रेसिपिटेशन यूज़ करेंगे तो हमें इस प्रकार के थ्रेड्स जो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब हमारा डीएनए अभी आइसोलेट हो चुका है। अभी लास्ट स्टेप है हमें मेजरमेंट कि कितना कॉन्सेंट्रेशन या कितनी क्वांटिटी ऑफ डीएनए वो सैंपल में प्रेजेंट थी। तो इसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, लाइक यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये हमारा लाइट एब्जॉर्प्शन पे चलता है और जो प्रिंसिपल है बियर लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। डीएनए कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे फिर? इट कैन बी एक्यूरेटली मेजर बाय यूवी एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या स्पेक्ट्रोमेट्री। द अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द सॉल्यूशन ऑफ डीएनए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डीएनए सैंपल। जो अपने पास सैंपल है, जितना क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट यूवी लाइट वो एब्जॉर्ब करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द quantity of or the concentration of DNA. Usually we absorb or we made an manual setting in the UV spectrophotometer that we absorb और the absorbance जो होता है वो हम मेजर करते हैं at 260 नैनोमीटर। at this wavelength absorbance of 1.0 corresponds to 50 माइक्रोग्राम of DNA per ml, ठीक है। सो दिस इज द पर्टिकुलर फ्लो चार्ट ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्शन। एनी सोर्स, मतलब कौन सा भी सोर्स लो आप, सेल, प्लांट सेल लो, बैक्टीरिया लो, एनिमल सेल लो। टिश्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो सेल लिसिस करो, फिजिकल करो या केमिकल। उसके बाद रिमूव मेम्ब्रेन लिपिड्स जो भी थे उनको रिमूव कर दो। फिर बाद में प्रोटीन्स को निकाल दो। लास्टली रिमूवल ऑफ अदर सेलुलर कंपोनेंट्स, बाकी के सेलुलर कंटेमिनेंट्स को भी निकाल दो। RNA जो रहेगा उससे भी निकाल दो, क्योंकि हमें सिर्फ DNA में इंटरेस्ट है। और आपका लास्ट स्टेप जो रहेगा, आपको प्यूरिफाइड DNA मिल जाएगा। अभी यह जो आइसोलेटेड DNA है, ये आपको अगर विजुअलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, एगारोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमने पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, एगारोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये पूरा स्टेप फॉलो करेंगे और इस प्रकार हमारा DNA विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो if you have any questions related to the isolation and purification of DNA, you can ask me in the comment section and read this particular topic. It is very easy, okay. And in the molecular technology or the molecular biology, it has the great importance because DNA आपका सेंट्रल डोग्मा का सबसे मेजर कंपोनेंट है। DNA आइसोलेशन, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ओके। थैंक यू।